you had discussed the attachment of various muscles to the mandible. The topic of today is also very closely related to the mandible. The topic I have written just parotid region and parotid gland, but actually it will cover all the structures present in this region. In yesterday class, when you had seen the figures of the mandible, you had seen the attachment of the masseter muscle and the temporalis muscle. And both of these muscles, they come under this region. Temporalis muscle itself arises from temporalis fossa, but it comes down and inserted on the mandible. You know, this group of muscles which is attached to the mandible, rather I say inserted to the mandible, they move the mandible. And you have seen, we have practically experienced of the movements of mandible during chewing of the food. And these movements are taking place on the temporomandibular joint. My today's topic, the parotid region and parotid gland, they are very closely related to the mandible. First of all, the extensions of the parotid region. You know the extensions of the parotid region, they extend vertically from this zygomatic arch. Vertically, if you start vertically, because we extend the region by its extensions vertically, horizontally. As in my last class, I told you that face extends vertically from hairy margin down to the chin. And horizontally, it extends from one ear to other ear. That is auricle to auricle, horizontally. You can see this is the side of the face. The parotid region is also the region of the side of the face. You can see lateral view in this picture of a human being. So from the extension of the parotid region extends from zygomatic arch down to the body of the mandible. It is vertically. And horizontally, it extends from anterior border of the sternocleidomastoid muscle to the anterior border of masseter. This is the masseter, and this is the sternocleidomastoid. You can see anterior border of sternocleidomastoid up to the anterior border of the masseter. This region is called a parotid region. And in this region, you will find out the main gland, which is the salivary gland. I will also today discuss little bit about other salivary glands. But the main topic is parotid gland. First of all, to localize the parotid gland, we just look at the bones, the demarcations. This bone is a mandible, body of mandible, and here underneath this parotid gland is the ramus of the mandible. A gap is there, a gap, vertical gap is present between the posterior border of the ramus of the mandible and the anterior border of the sternocleidomastoid. And this gap from anterior-posteriorly is filled with the green color structure parotid gland. It is
from anterior to posterior extension. Anterior border of the parotid gland, posterior border of parotid gland. This is fitted in this gap, and vertically it extends from the external parotid gland to the angle of the mandible. This is the vertical extension of the parotid gland. From the introduction of the head and neck, you have done, because I have not done. You have seen that the deep fascia of the, it is divided into four. पहली क्लास नहीं दिया, उसका भी रीजन है क्यों नहीं दिया, बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन नहीं दिया. लेकिन ये डीप fascia नेक में है, and if you start deep fascia from back, it is attached posteriorly to the spines of the cervical vertebrae, dorsal spine of the cervical vertebrae. Why? The spines of the cervical vertebrae, the external occipital protuberance, the superior nuchal line, its medial half, they are giving attachment to a muscle of upper limb. You have discussed. Upper limb में भी आती है, यहाँ head and neck में भी आती है, and that muscle is called trapezius. So the deep fascia comes from here, from posterior side, envelops. जैसे ही ये cervical vertebrae से spine से rise होगा, deep fascia attached होगा, तो forward run करेगा, और forward run करके दो में split हो जाएगा, दो layers में. One outside the trapezius and other inside the trapezius. तो अगर दोनों हाथों को मिला दें आप, तो आपको महसूस होगा कि आपका बाहर वाला हाथ जो है आउटर लेयर है और अंदर वाला हाथ इनर लेयर है, और उन दोनों के बीच में ट्रेपीजियस पड़ी है. Then from anterior border of trapezius to the posterior border of sternocleidomastoid, ये देख रहे हैं posterior border, anterior border of trapezius नजर इसमें नहीं आ रही, लेकिन ये posterior border of sternocleidomastoid नजर आ रही है, और यहां पर पहुंचेगा, and this space behind sternocleidomastoid and in front of anterior border of trapezius is called posterior triangle of neck. This is called posterior triangle of neck. तो अगर posterior triangle of neck या roof कहें, तो it will be formed by skin, superficial fascia and this layer of deep fascia, और इस लेयर का नाम ही है इन्वेस्टिंग लेयर. देखिए इन्वेस्ट कर रहा है, पूरी इन्वेस्ट कर रहा है, एनवेलप कर रहा है पूरी नेक, फ्रॉम सर्वाइकल 1 वर्टिब्रा टू 7. नेक भी यही एक्सटेंड करती है, सर्वाइकल 1 वर्टिब्रा से लेकर सर्वाइकल 7 तक, और ये पूरा का पूरा उसको एनवेलप करता आ रहा है. ट्रेपीजियस को एनवेलप किया, फिर रूफ बनाई पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की, और जब यहां पहुंचा इस जगह जहां पोस्टीरियर ट्रायंगल खत्म हुआ, here is the posterior border of sternocleidomastoid. ये वही करेगा जो ट्रेपीजियस के साथ किया. यहां पर आके पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टernocleidomastoid पे आपका इन्वेस्टिंग लेयर फिर दोबारा स्प्लिट होगा, आउटर लेयर और अंदर की तरफ इनर लेयर, और एनवेलप करेगा sternocleidomastoid को फ्रॉम इट्स mastoid अटैचमेंट टू क्लेविकल एंड स्टर्नम अटैचमेंट. नीचे पूरा का पूरा इसको पीछे से एनवेलप करेगा, और आगे आके फिर दोबारा जुड़ जाएगा, और यहां पर आपका पड़ा है एंटीरियर ट्रायंगल, एंटीरियर border of sternocleidomastoid and anterior median line of neck. This is another triangle which is called anterior triangle of neck. इसको इन्वेस्ट करेगा, लेकिन रिमेंबर दैट
This deep fascia will be attached to the lower border of the body of mandible. It will not go on the face. इसीलिए फेस पे नहीं जाएगा, ताकि आप माउथ को वाइडली ओपन कर सकें, जितना चाहे ओपन कर सकें, जितना निवाला लेना चाहे खा सकें। लेकिन अगर अल्लाह मियां ने यहाँ पर डीप फेशिया दिया होता तो बेटे आप अपना माउथ उतना ही खोलते जितना डीप फेशिया अलाउ करता, उसके आगे डीप फेशिया अलाउ ही नहीं करता, क्योंकि डीप फेशिया डज नॉट स्ट्रेच। स्ट्रेचेबिलिटी डीप फेशिया में है ही नहीं, तो इसलिए अल्लाह मैंने डीप फेशिया यहाँ दिया नहीं। तो मैं ये बात कर रहा था कि यहाँ पे एनवेलप किया, फिर एंटीरियर ट्रायंगल की रूफ बनाई, इन्वेस्ट किया पूरी नेक को, यहां से आने वाला इधर तक आ गया, ये है राइट साइड ऑफ द फेस एंड नेक, और लेफ्ट साइड से आएगा इस तरफ और आके यहां सेंटर में जुड़ जाएंगे, पूरी नेक को इन्वेस्ट कर दिया। सो दिस लेयर ऑफ द डीप फेशिया इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया। इतना सा नहीं, यहां आएगा हमारे टॉपिक पे, पैरोटिड रीजन पे। जब एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड पे पहुंचेगा, जो रिलेटेड है विद पैरोटिड, this deep fascia again will split here, will split and will envelop the parotid gland। बाहर से भी पैरोटिड को कवर करेगा और सीधा चला जाएगा लोअर बॉर्डर ऑफ द ज़ाइगोमेट्रिक आर्च पे। यानी पैरोटिड रीजन में डीप फेशिया आपको मिलेगा, कवरिंग इधर नहीं मिलेगा फेस में, इधर नहीं मिलेगा आपको माउथ पे, इधर नहीं मिलेगा आपको नोज पे, और यहां मिलेगा। यानी इट विल एनवेलप द पैरोटिड ग्लैंड एंड एक्सटर्नली एज वेल। ये सुपरफिशियल सरफेस है पैरोटिड की, और अंदर की तरफ जो छुपी हुई है, जो कि फंसी हुई है बिटवीन रेमस ऑफ द मैंडिबल एंड द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड, उसको हम कहते हैं डीप सरफेस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। और ये जो एनवेलप बना पैरोटिड ग्लैंड का, इसकी बड़ी अहमियत है। जब पैरोटिड की हम अप्लाइड पढ़ेंगे, लास्ट में मैं अप्लाइड पैरोटिड की बताऊंगा, तो उसमें देखना कि इसका क्या अहम किरदार है। तो दिस इज हाउ द पैरोटिड ग्लैंड इज एक्सटेंडिंग। और पैरोटिड ग्लैंड जस्ट बीनीथ स्किन पड़ी है। आप अगर हाथ रखें तो ये पैरोटिड ग्लैंड हमारी जो है, ये इस मेसेटर मसल के बाहर पड़ी है। ये मेसेटर मसल है, इसके बाहर ये पूरी ग्लैंड सुपरफिशियली पड़ी है। यानी स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और जितना पार्ट डीप फेशिया उसके नीचे पड़ी है, करीब करीब पड़ी है। तो पैरोटिड ग्लैंड अब मैं डिफाइन करता हूं, हैज गॉट द अपर बॉर्डर which is extending just below the external acoustic meatus, के नीचे पड़ी है, और external acoustic meatus को एक गैप कर रहा है। Then it has got lower pole which reaches to the angle of the mandible. It has got an anterior border, वो देखें ऐसे जा रही है, ऐसे टर्न करके मेसेटर के ऊपर एंड देन नीचे, और एक posterior vertical border जो पीछे के स्टर्नो पैरोटिड ग्लैंड। और इसकी जो डीप सरफेस है अंदर से, क्योंकि मैडम ने कहा है कि उसने बेस ऑफ स्कल भी आपको पढ़ा दिया है। बेस ऑफ स्कल पे एक टूथ लाइक प्रोसेस नीचे स्कल से आ रहा है, क्रेनियल कैविटी के बेस पे एक स्टाइलॉइड प्रोसेस, या स्टाइलॉइड प्रोसेस जो है वो मीडियल साइड ऑफ द मेस्टॉइड। ये मेस्टॉइड है, तो मेस्टॉइड के मीडियली पड़ा है स्टाइलॉइड प्रोसेस। और याद रखें, स्टाइलॉइड प्रोसेस और मेस्टॉइड के बीच में एक छोटा सा फोरामेन है। फोरामेन तो छोटा है, लेकिन बड़ी अहम नर्व यहां से निकल रही है, और उस फोरामेन का नाम है स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन।
जब आपने देखा कि मेस्टॉइड पे स्टेनोग्लिडोमास्टॉइड है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ स्ट्रैप प्रोसेस होगा, तो उनके बीच में जो चीज निकलेगी वो पैरोटिड के मीडियली पड़ेगी, मीडियल टू पैरोटिड ग्लैंड, और उस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का नाम है फेशियल नर्व। वो जो फेशियल नर्व है, आप देखेंगे नीचे वाली फिगर में, वो ये निकल रही है फेशियल नर्व। अगर आप देखें, दिस फेशियल इज दिस वन, येलो कलर की ये चीज आ रही है, इसका नाम है फेशियल नर्व। क्या नाम है? फेशियल नर्व। और दिस फेशियल नर्व आप देखें, इट इज लाइंग मीडियल टू द ग्लैंड। ये कट सेक्शन है पैरोटिड ग्लैंड का। और मैंने जो एनवेलप बताया वो ये एनवेलप है, ग्रीन जो फेशिया है, ये डी फेशिया है, ये डी फेशिया है, ये डी फेशिया है, ये डी फेशिया है, जो चारों तरफ से कवर कर रहा है आपकी पैरोटिड ग्लैंड को। और यहां से जो स्ट्रक्चर निकल रही है जिसका मैंने नाम बताया, वो है ये फेशियल नर्व। और दिस फेशियल नर्व is entering into deep surface of the parotid gland. It is entering posterior surface through and in two part. This is a deep part. ये deep part है पैरोटिड ग्लैंड का, ये deep part हो गया। और इस नर्व के बाहर जो है सुपरफिशियल पार्ट हो गया। तो दिस इज द सुपरफिशियल पार्ट of parotid gland. Parotid gland. The deeper part of parotid gland is containing the vessels, and these are very important vessels. One is the, क्योंकि आप देखें नेक से नीचे के यहां से एक आर्टरी आ रही थी ऊपर की तरफ जहां से घुसी थी पैरोटिड ग्लैंड में, उसका नाम था एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये यहां से आती है और पैरोटिड में घुस जाती है, और रीचिंग टू द अपर पार्ट ऑफ पैरोटिड, इनसाइड पैरोटिड, बिहाइंड द नेक ऑफ द मैंडिबल, ये आर्टरी डिवाइड हो रही है। किसमें डिवाइड हो रही है? टर्मिनल ब्रांचेस में। और दीज टर्मिनल ब्रांचेस आर एंटीरियर मैक्सिलरी आर्टरी और पोस्टीरियर superficial temporal artery. The anterior artery is the terminal branch of the external carotid artery called the maxillary artery, and the posterior branch of the external carotid artery, which is finally terminal branch, is called the superficial temporal artery. Last time जब मैंने वेनस ड्रेनेज ऑफ फेस बताया था, तो बेटा मैंने आपको कहा नहीं था कि जो आर्टरी होती है उसके साथ वेन उसी नाम की होती है। जब मैक्सिलरी आर्टरी है तो मैक्सिलरी वेन भी होगी, जब सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन भी होगी। और अक्ल ये these two veins should unite to form external carotid. एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी डिवाइड हो गई है मैक्सिलरी आर्टरी में और सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी, लेकिन मैक्सिलरी वेन वो क्या बनाते हैं? इट्रोमैंडिबुलर वेन। क्या बनाते हैं? एंड दिस रिट्रोमैंडिबुलर वेन जो मैंने पहले बताई कि ये वेन बनती है मैक्सिलरी से सुपरफिशियल टेम्पोरल के यूनियन से, लेकिन जब यूनाइट होती हैं तो उसके बाद ये
क्लास पे बैठना चलाएं तो बेटा बात समझ आई कि ये जो वेन है वो यूनाइट होके रिट्रोमैंडिबुलर वेन बना रही है, और ये रिट्रोमैंडिबुलर वेन दो में डिवाइड हो रही है, एक इसका पोस्टीरियर डिवीजन है ये वाला, और एक इसका एंटीरियर डिवीजन है, यहां नहीं नजर आ रहा। द पोस्टीरियर डिवीजन यूनाइट्स विद पोस्टीरियर auricular vein to form external jugular vein, and anterior vein जो इसका डिवीजन है that unites with facial vein, and that union forms common facial vein that drains into the internal jugular vein जो स्टेनोक्लीडोमेस्टोइड के आगे रन कर रही है। ये आपका कॉन्सेप्ट होगा कि अगर आप यहां पर देखें तो इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये दोनों स्टेनोक्लीडोमेस्टोइड मसल के एंटीरियर बॉर्डर के साथ रन कर रही हैं। एंड इफ यू वांट टू feel the pulsation, you can feel here, but remember that again, don't press both arteries and don't press too much, because if you press these arteries, internal carotid artery or common carotid artery, for feeling a pulsation, if you press hard, the blood supply to the brain will be stopped, and once the brain blood supply is cut, the person will not be there, he will be unconscious, और जितना आप जल्द छोड़ोगे तो ठीक है, नहीं तो वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। तो इसीलिए दिस इज नॉट द कॉमन साइट ऑफ द फीलिंग ऑफ पल्सेशन ऑफ द आर्टरी, लेकिन कभी अगर देखना है तो एक साइड पे आप थोड़ा सा लिटिल बिट प्रेशर देके चेक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटेंशंस, द रिलेशन मीडियली इट इज रिलेटेड टू दीज स्ट्रक्चर्स। मैंने बताया कि मीडियल ये किसके साथ रिलेटेड है, पोस्ट्रोमीडियली ये कैरोटिड शीथ पड़ी है, देखिए पैरोटिड के इंटरनली ये पड़ी है कैरोटिड शीथ। मैंने कहा ना डीप फिश के चार पार्ट हैं, एक होता है इन्वेस्टिंग लेयर जो ये इसको एनवेलप कर रहा है पैरोटिड को, दूसरा पड़ा है कैरोटिड शीथ, और एक पड़ा है प्री ट्रेकियल फेशा, और एक पड़ा है प्री वर्टिब्रल फेशा। ये बातें लिख लें कि देयर आर 4 parts of the deep fascia of the neck। सबसे बाहर जो पड़ा है इन्वेस्टिंग लेयर, then it gives inside a partition in front of trachea which is called pretracheal fascia, and another partition gives there in front of the prevertebral muscles which is called prevertebral fascia, और एक ये शीथ बना रहा है अराउंड द इंटरनल जुगुलर वेन एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड वेगस नर्व, एंड दिस इज कॉल्ड कैरोटिड शीथ। तो 4 पार्ट हैं, जहां भी आपको कोई शॉर्ट नोट आ जाए डीप फेशिया में लिखना पड़े तो उसको कम से कम पहले आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इन्वेस्टिंग लेयर, प्रीट्रेकियल फेशिया, प्रीवर्टिब्रल फेशिया एंड कैरोटिड शीथ। जनाब ये पैरोटिड ग्लैंड जो है, अब आता हूं थोड़ा सा इसका फंक्शन। ये लोकेशन हो गया, कंटेंट मैंने बता दिए कि इट कंटेन्स द बाइफर्केशन ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, फॉर्मेशन ऑफ रिट्रोमैंडिबुलर वेन जो डी पार्ट में पड़े, और इट आल्सो कंटेन्स ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व व्हिच आर सेपरेटिंग इट फ्रॉम द डी पार्ट। यानी फेशियल नर्व की ब्रांचेस अगर आप फेस पे रखें तो 5 ब्रांचेस हैं। ऑलमोस्ट आपने देखा है कि रूल के मुताबिक हमेशा नर्व्स डीप होती हैं, वेन सुपरफिशियल होती हैं, लेकिन इस रीजन में जो फेशियल नर्व फेस पे आती है, पिछली क्लास में मैंने दिखाया था, आप अपना हाथ राइट हाथ या लेफ्ट हाथ अपने फेस के साइड पर रखें, और थंब जो है इट शुड go to the temporal region and the little finger should go
to the neck below the mandible. तो आपको ये 5 ब्रांचेस मिलेंगी, 5 फिंगर्स हैं, बिग टो, टेम्पोरल ब्रांच, इंडेक्स फिंगर, zygomatic branch, middle finger, buccal branch, ring finger, mandibular branch, and little finger is cervical branch. These are 5 branches of the facial nerve. और ये इधर सिर्फ एक दिखाई गई, इधर 5 हैं. और खुदा न खास्ता आप जब डॉक्टर बने तो पैरोटिड रीजन पे खुदारा आप सर्जरी नहीं करना, स्पेशलिस्ट को भेज दें पेशेंट को. क्यों? If you perform surgery over this region, you can damage this facial nerve, and damage to the facial nerve, cutting of the facial nerve branches will finally lead to the unilateral facial palsy. अगर कोई नर्व बच गई ऊपर जो सप्लाई कर रही है मसल्स ऑफ द आईलिड्स को, तो बच जाएंगी आईलिड्स की मसल्स, तो मरीज आंख बंद कर सकेगा. एंड इफ यू कट दैट नर्व आल्सो, द पर्सन कैन नॉट मूव द एंगल ऑफ द माउथ. आपने देखा होगा फेशियल पैल्सी के पेशेंट, उनकी एक एंगल गिरी होती है नीचे, जब वो मुस्कुराते हैं तो एक एंगल ऑफ द माउथ मूव्स लेटरली, और सेकंड एंगल जो अपोजिट जो पैरालाइज्ड है वो मूव नहीं करती. तो इसीलिए क्लिनिकली एज अ डॉक्टर, as a practitioner, avoid the incisions on the parotid region in your clinical practice. So parotid gland के लिए अगर histologically देखें तो this is predominantly serous gland. The parotid gland, there are 2 types of secretions of saliva because this is salivary gland. सलाइवरी ग्लैंड्स में 2 टाइप की सलाइवा होती है हमारे पास सिक्रीशंस. और थोड़ा सा सलाइवा के बारे में बताऊं क्योंकि आप जीएटी कर चुके हैं, एब्डोमेन जब हुआ तो फिजियोलॉजी में आपको मुझसे ज्यादा पता होगा. लेकिन सलाइवा सर्व्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर द बॉडी. मैं कहता हूं डाइजेशन से ज्यादा जो अहम उसका काम है, जो डाइजेशन में सलाइवा का इतना बड़ा रोल नहीं है. थोड़ा सा स्टार्च वहां पर सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट करता है माउथ में, वरना द सलाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग द हाइजीनिक कंडीशन ऑफ द माउथ. अपार्ट फ्रॉम म्यूकस secretions and serous secretions. Serous secretions are the watery secretions. Mucus secretions are the secretion of mucin, which lubricates and helps in the formation of the bolus. इसके अलावा जो मेरी नजर में जो अहम काम करता है सलाइवा, वो हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करता है, because it contains lysozyme, an enzyme which kills the bacteria. जितने भी बॉडी के ओपन पार्ट्स हैं सरफेस पे, माउथ, नोज, अदर पार्ट्स, एक्सटर्नल जेनिटलिया, एनल ओपनिंग, they all are vulnerable to the infection. Entry of infection is more common from these areas, or because of that अल्लाह ने इन एरियाज को मॉइस्ट रखा है, ताकि जब आप ईयर करेंगे ना, ईयर में भी अल्लाह मियां ने 2 ग्लैंड्स दिए हैं, एक सीबेशियस ग्लैंड्स और एक एक्सटर्नल ईयर की बात कर रहा हूँ, सेरोमिनस ग्लैंड्स, वो बॉडीफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं जो मॉइस्ट रखती हैं ईयर को और रिमूव करती हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, स्टिकी है, स्टिकी. तो माउथ में लाइसोजाइम एंड also saliva contains an immunoglobulin. In the secretions, maybe saliva, maybe tears. आपने जरूर पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में. This is called IgA, immunoglobulin A. Immunoglobulin A is secreted in the saliva, and that antibody inhibits the growth of the bacteria and prevents
the infection of the mouth, oral cavity.